Amol Shivajirao Pawar is a painter based in Pune and has been extensively exploring different mediums in various forms, textures, and colors. Pawar has completed his art education from GD Art Applied Art, from Abhinav Kala Mahavidyalaya, Pune, Maharashtra. Nature and its elements have been one of the most recurring themes in Pawar's paintings. There is constant experimentation and engagement with the realism and Shakti cult. His paintings reflect over the abstraction of life and nature and their amalgamation as one entity. His current theme, Shakti, itself is a manifestation of divine feminine creative power. Its manifestation and representation are not only limited to human form but also anthropomorphic. From the tonality of different forms to the choice of colors, Pawar's paintings exude both harmony and chaos. The abstraction created by using the shades of azure, red, and gold adds to the divinity of his paintings. It is very evident from his work that he is highly influenced by Indian mythology and is constantly making an effort to recreate them by using contemporary aesthetics. Pawar's painting plays through different themes and motifs from the Hindu canon of gods, but also there is a strong symbolism of the prevailing sense of femininity. While talking about his most recent exhibition, Pawar mentions, "My current exhibition's concept is Shakti, a power, as a concept that personifies the divine feminine creative power. In Hindu culture, there is a lot of importance to mythology. As a kid, you grow up listening to various stories of mythology that inspired us. I am trying to depict them in my painting series. Not just the human form, both male and female, but even the manifestation of the animal was very intrinsically presented." Pawar stresses his methodology and talks about how he uses a different style of textures, calligraphy, creative forms, and small icons. Indeed, the use of 24-karat gold in his paintings has added richness and mysticism to his work. नमस्ते, मैं आर्टिस्ट अमोल पवार महाराष्ट्र से। जैसे कि बहुत सारे आर्टिस्टों का आर्टिस्टिक जर्नी उनके बचपन से शुरू होता है, वैसे ही मेरा भी आर्टिस्टिक जर्नी मेरे बचपन से शुरू हुआ है। मेरा बचपन जो है वो गांव और शहर ऐसे दोनों जगह पे गया। बचपन में मैं देखता कि जब भी घर में कोई त्योहार होता तो घर की जो औरतें हैं वो हाथों में मेहंदी बनवाती, टैटू बनवाती, घर का जो आंगन है तो आंगन में ये लोग रंगोली बनवाती। वहां खड़े रहते मैं देखता कि ये क्या प्रकार के आर्ट फॉर्म बनवा रही है। तो वहां पे कुछ ग्राफिक्स, सिंबल, छोटे छोटे कैलीग्राफी हम लोग बोल सकते कि जैसे कि शुभ दीपावली उन्होंने लिख दिया, हैप्पी दिवाली इंग्लिश में लिख दिया, उसको थोड़ा सा डेकोरेटिव कर दिया, कुछ गणेश जी के फॉर्म्स उन्होंने बनवा दिए, तो दिवाली का कुछ छोटा सा दिया बनवा दिया। तो ये जब मैं इनको ये सब करते देखता तो इनके छोटे छोटे ग्राफिक्स ये सेम चीज में अपने नोटबुक के पिछले पन्ने जो है वहां पे कॉपी करने की कोशिश करता। जैसे जैसे मैं और इनको करता गया और अलग अलग छोटे छोटे पेंटिंग बनवाते गया तो जब स्कूल में कंपटीशन होती तो कंपटीशन में मैं हिस्सा लेने लगा। हिस्सा लेने के बाद फिर प्राइजेस मिलने लगी। प्राइजेस मिलने के बाद फिर ऐसा लगा कि अरे नहीं, थोड़ी और पेंटिंग अच्छी करनी चाहिए। जब लोगों को अप्रिसिएशन मिलने लगा तो मुझे लगा कि अरे ये तो कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो इस प्रकार से आर्ट के संस्कार जो है मेरे बचपन से इन लोगों ने मेरे ऊपर किए। जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया और उसके बाद मेरा आर्टिस्टिक जर्नी और थोड़ा सा आगे बढ़ता गया तो मैं कॉलेज मेरे खत्म होने के बाद अलग अलग टाइप की मैं सीरीज बनवाते गया। तो अलग अलग सीरीज में बनवाता, उनको प्रदर्शित करता, अलग अलग आर्ट कंपटीशन में भाग लेता। तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि जो मैंने बचपन में बहुत सारी कहानियां सुनी है, क्योंकि घर में जो थोड़ा सा माइथोलॉजिकल थोड़ा सा माहौल था, तो जो अलग अलग कैरेक्टर जो है माइथोलॉजी के जो मेरे मन को बहुत भाते, जिसमें राम, हनुमान, शिवजी, पार्वती, जो अलग अलग कैरेक्टर है, तो मैंने सोचा कि इनको एक शक्ति सीरीज जो मैं पेंटिंग, एक शक्ति सीरीज की पेंटिंग कर रहा हूँ, तो शक्ति सीरीज में ये सब कैरेक्टर मेरे आते हैं। बचपन से मैं आकार और निराकार ये दोनों चीजों को मानता हूँ। जैसे कि हम लोग एक फूल को पकड़े तो फूल जो है, फूल एक आकार है
लेकिन फूलों की जो सुगंध है वो सुगंध एक निराकार है, वो एक एब्स्ट्रैक्शन है। तो मेरे पेंटिंग में भी वो चीज आती है। एक फॉर्म जो है वो फॉर्म अलग अलग टाइप में आता है, अलग अलग इनका जो प्रतीक है, जो इनके जो फॉर्म है, राम जी का, हनुमान जी का, शिव जी का, ये कैरेक्टर जैसे कि मेरे पेंटिंग में आते हैं, वैसे ही एब्स्ट्रैक्शन जो फूलों का सुगंध का जो एब्स्ट्रैक्शन है, वो एब्स्ट्रैक्शन फूलों का मेरे पेंटिंग का जो बैकग्राउंड है इसमें आते हैं। तो इसमें छोटे छोटे ग्राफिक्स है, आइकॉन है, सिंबोलिज्म है, अलग अलग टाइप का टेक्सचर में यूज करता हूँ, कुछ ट्रांसपेरेंट चीजें पेंटिंग में रखता हूँ। तो ये चीजें जब पेंटिंग में आते हैं तो मुझे लगता है कि ये लोगों को ज्यादा और अप्रिशिएट करे। हम लोग किसान परिवार से हैं, तो जब हम लोग गांव जाते हैं तो अलग अलग रंगों की मिट्टी देखने को मिलती है। मेरे पेंटिंग का जो बहुत सारा बैकग्राउंड होता है वो अर्थ टोन का आता है। तो मिट्टी से जुड़ा हुआ एक जो नाता है मिट्टी का, तो वो पेंटिंग में लाने की थोड़ी कोशिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पेंटिंग जो है लोगों को और ज्यादा आनंद दे। लोगों को मेरी सोच क्या है कि लोग मेरे पेंटिंग के थ्रू समझे। मैं हिना भट्ट जी का तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो आर्ट कैंप रखा है, इस आर्ट कैंप का एक हिस्सा मुझे माना है। और मैंने भी एक दो पेंटिंग अलग टाइप में मेरा जो स्टाइल है इसमें करने की कोशिश की है। तो आशा है कि ये मेरे दोनों पेंटिंग लोगों को और ज्यादा पसंद आए और लोग थोड़ा सा और उसको और इंटरेस्टिंग तरीके से देखें। थैंक यू सो मच हिना जी, थैंक यू सो मच।
है।